जय हिंद. टाइम्स ऑफ पुणे चॅनलवर आपले मनापासून स्वागत. डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आदर्श शिक्षक पुरस्कार सोहळा दिमाखदार कार्यक्रमाने संपन्न. मागील 10 वर्षांपासून भारतरत्न मौलाना आझाद सोशल एज्युकेशन अँड स्पोर्ट असोसिएशन तर्फे भारताचे दिवंगत राष्ट्रपती डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्या जयंतीनिमित्त पुणे शहर आणि महाराष्ट्रातील नामांकित शाळा महाविद्यालयातील सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या शिक्षकांचा सन्मान डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आदर्श शिक्षक पुरस्कार देऊन करण्यात आला. यावेळी आदर्श शिक्षक, उत्कृष्ट स्टाफ, गुणवंत विद्यार्थी असे एकूण 200 पेक्षा अधिक पारितोषिके वितरित करण्यात आली. वानवडी येथील महात्मा ज्योतिबा फुले सांस्कृतिक भवन येथे या भव्य दिव्य कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. कार्यक्रमाची सुरुवात सुरेल सदाबहार गीतांचा कार्यक्रम संगीत रजनीने करण्यात आली, ज्याचा मनसोक्त आनंद आबालवृद्धांनी घेतला. कार्यक्रमाचे अध्यक्ष नागपूर विद्यापीठचे माजी कुलगुरू डॉक्टर एस.एन. पठाण होते. यावेळी प्रमुख पाहुणे माजी आमदार महादेव बाबर, राष्ट्रवादी काँग्रेस अल्पसंख्याक प्रदेश उपाध्यक्ष इकराम खान, माजी नगरसेविका हसीना इनामदार, मौलाना शबी हसन काझमी, छावा स्वराज्य सेनेचे प्रदेशाध्यक्ष माननीय श्री आरिफ शेख व अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघटनेचे महाराष्ट्र अध्यक्ष फारुकी सर हे मान्यवर उपस्थित होते. या कार्यक्रमाचे आयोजन असोसिएशनचे संस्थापक अध्यक्ष माननीय श्री अमानत जाफर शेख यांनी केले होते, तर संयोजन असोसिएशनचे पदाधिकारी रफिक तांबोली, आदम सय्यद, मुबारक जमादार, के विजयराव सर, नाझीर शेख, आसिफ मेमन, अनवर शेख, इम्रान शेख, अली शेख, राजू खान, परवीन शेख यांनी केले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन प्रसिद्ध निवेदक इक्बाल अन्सारी व कॉर्पोरेट ट्रेनर नसरीन इंजिनियर यांनी केले. यावेळी शिक्षकांप्रती कृतज्ञता दाखवून त्यांचा मान सन्मान व सत्कार केल्याबद्दल सर्व शिक्षकांनी भारतरत्न मौलाना आझाद सोशल एज्युकेशन अँड स्पोर्ट असोसिएशनचे आभार मानले. भारतरत्न मौलाना आझाद सोशल एज्युकेशन and Sports Association is a registered organization registered under Bombay Charitable Trust Act 1952, established with sole aim of promoting national integration, brotherhood and communal harmony to uplift poor and needy people and students in the society, which is the essence of the teaching of Maulana Azad. We have also made the audience aware of the contribution of Maulana Azad in the freedom struggle of India and his contribution to improve the educational system after the independence. Following are the activities organized by our organization. Maulana Azad birth anniversary and other occasions are always here every year. All India Mushaira of birth anniversary of Bharat Ratna Maulana Azad. It was organized by our association, in which national leader Mr. Tariq Anwar, Central Minister, was the chief guest with Mr. Haji Ibrahim Sheikh, President Hajj Committee, Maharashtra. Renowned poet, late Mr. Rahat Indori Saab and few others were also present. In the year 2020, before COVID, we also organized a mega job fair in Pune College, chief guest being Honorable Nawab Malik Sir. A total of 3,500 applicants had registered. 650 applicants on the spot were registered for jobs in various companies. To sum up, I would like to quote the following words. The man who moves mountains begins by carrying away small stones. Thank you very much. A life of joy and happiness is possible on the basis of knowledge and science, quoted by Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. Dr. Sarvapalli Radhakrishnan was a great person. He became the first vice president of the country and second president of Free India. He was a philosopher, a teacher and an author. In audition of birthday,
5th September is celebrated as a Teachers' Day in India everywhere. He was among the great leaders of our country due to the contribution to education. His birthday is often called Teachers' Day. The foundation of the award function is based on the teachings of Maulana Abul Kalam Azad, a scholar, freedom fighter, and the first education minister of independent India. हर जो भी इंसान है बगैर कोई उस्ताद के यहाँ पर मौजूद नहीं है। किसी न किसी तरह से कोई न कोई हिले से वो उस्ताद के जरिए यहाँ तक पहुँचा है। हम आप सब मिलकर उस्ताद की बदौलत यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आज उनका एजाज़ के इस प्रोग्राम में मुझे अमानत साहब ने बुलाया, मैं उनका ममनून और मशकूर हूँ। और आप तमाम को, जिन लोगों को आज इस अवार्ड से नवाजा जा रहा है, वो हमारे मेरिटोरियस स्टूडेंट्स 12वीं जमात के हो, 10वीं जमात के हो, और जो टीचर हजरात है, प्रोफेसर है, लेक्चरर है, प्रिंसिपल है, हेडमास्टर है, जिनको ये अवार्ड दिया जा रहा है, मैं उनको अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संगठन की जानिब से और मेरी तरफ से, तमाम आप लोगों की तरफ से भी मैं उनको पुरखुलूस दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। मैंने यूरोप में अभी 3-4 साल पहले हम और कलाम भाई जर्मनी फ्रैंकफर्ट में भी थे। मैंने वहाँ लोगों को, पेरेंट्स को बिलखते और रोते हुए देखा। क्यों? इसलिए कि जिंदगी में कभी कभी सब कुछ होता है मगर कुछ भी नहीं होता है। आज इतने सारे लोग तशरीफ फरमा है। मैं आपसे पूछूं कि एक पढ़े लिखे इंसान की परिभाषा क्या है? एक तालीम याफ्ता शख्स और शिक्षित आदमी की डेफिनेशन क्या है? तो जाहिर अक्सर लोग ये कहेंगे कि जो पूना कॉलेज में जिसने BSc और MBA किया वो पढ़ा लिखा है, जो पूना यूनिवर्सिटी में पढ़ा वो पढ़ा लिखा है, जो MBBS MS हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वो पढ़ा लिखा है। लेकिन ये जुमला अपने जहनों में रखिएगा और लेके जाइएगा कि जब कायनात के इमाम और मौला हजरत अली से किसी ने पूछा कि ये बताइए या अली, जाहिल और आलिम में फर्क क्या है, पढ़े लिखे आदमी में और अनपढ़ में फर्क क्या है? तो एक ही जुमले में उन्होंने बहुत बड़ा फर्क बताया। क्वेश्चन क्या है, सवाल क्या है कि जाहिल और आलिम में फर्क क्या है, पढ़े लिखे में और अनपढ़ में फर्क क्या है? अली कहते हैं कि जाहिल वो है, आलिम वो है जो सोच के बोलता है, और जाहिल वो है जो बोल के सोचता है। हम 2 बच्चे संभालना मुश्किल होते हैं और हमारे टीचर 40-40 बच्चे एक क्लास में उनको पढ़ाते, उनको एजुकेशन देते हैं, उनका टैलेंट बाहर निकालते हैं। इसलिए आज का दिन टीचर्स का दिन है। मैं सभी टीचर्स को आज के दिन बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ और अमानत भाई आपसे और आपके सभी मेंबर्स को का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने यहाँ पर हमको बुलाया, इज्जत अफजाई की। इसके लिए मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ। शिक्षक क्या करता है, शिक्षक की पावर क्या है, शिक्षक की ताकत क्या है, मैं एक जुमले में बताना चाहता हूँ। एक शिक्षक, एक बच्चा और एक पिता पूरी दुनिया को बदल सकते हैं, पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। यहाँ पर जिन लोगों का भी एजाज होने जा रहा है हमारे तंजीम की जानिब से, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी बात को खत्म करता हूँ और आगे हमारे अमानत भाई ने जो भी ये जो काम किया हुआ है, देने वाले हाथ चाहिए, अल्लाह ताला की मदद आती है, देने की आदत डालो, अल्लाह और नवाजेंगे। बस इतनी बात। अमानत भाई साहब, मैं तो पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद इसलिए दे रहा हूँ कि आपने एक पत्थर में 2 चिड़िया को बुलाया। कैसे बुलाया कि मौलाना आजाद साहब फाउंडेशन का नाम, जिनके नाम पे, मौलाना आजाद साहब के नाम पे एजुकेशन डे पूरे इंडिया में मनाया जाता है। ये बहुत से लोगों को पता नहीं है, क्योंकि मौलाना आजाद साहब ने एजुकेशन का एक बुनियाद डाली देश में। आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लो एजुकेशन की, UGC है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, AICTE है, NCERT है, AICTE यानी वो एजुकेशन के बारे में, ऑल इंडिया टीचर्स काउंसिल, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ये सबकी फाउंडेशन, सबकी स्थापना
मौलाना आजाद साहब ने किए, जो इस देश के पहले शिक्षा मंत्री हैं, बहुत बड़े शिक्षक हैं। मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, क्योंकि मौलाना आजाद फाउंडेशन है इसलिए बोलना चाहिए। हमारा भाई साहब, आज भारतीय संस्कृति का पूरे दुनिया में नाम हो रहा है, और भारतीय संस्कृति जो प्राचीन है, ऋषि मुनियों की संस्कृति है, सूफी संतों की संस्कृति है, कि एक दिन इस भारतीय संस्कृति पूरे दुनिया में एक नॉलेज कॉरिडोर यानी ज्ञान का दालन बन के उभर आएगी और पूरे दुनिया को शांति का संदेश देगी। और हो रहा है। शायद ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर भी ऐसा न हो कि इंडियन यानी वंश का वो चुना जाएगा, हो रहा है। ये भारतीय प्राचीन संस्कृति सबसे पहले किसको समझ गई, आपको मालूम नहीं होगा इसलिए बोल रहा हूं मैं, मौलाना आजाद साहब को, जो मदरसे से पढ़े। साहब, हमारे मुसलमान भाई को मैं विनती करता हूं कि मालूमात करो, जो कभी फॉर्मल एजुकेशन इंस्टीट्यूट पे नहीं गए, मदरसे से पढ़े। ऐसे मौलाना साहब ने शिक्षा मंत्री होने के बाद में बताया कि ये भारत की प्राचीन संस्कृति जो है दुनिया को समझना चाहिए, और इसके लिए मौलाना साहब ने इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस ICCR की स्थापना की। आज दिल्ली में आजाद भवन नाम से वो कैंपस है, और मैं इतना खुद को नसीबवान समझता हूँ कि वो संस्था का मैं 3 साल उपाध्यक्ष रहा, वाइस प्रेसिडेंट। और एक बात कहूंगा सिर्फ मौलाना आजाद साहब के बारे में। जब मौलाना आजाद साहब ने कहा कि अरे भारतीय संस्कृति इतने महान है, देखो एक मुसलमान मौलाना कह रहे ये लोगों को समझना चाहिए, तो वो IAS ऑफिसर ने बोला कि सर अपने पास जगह नहीं है, ऑफिस का खोले। तो मौलाना साहब ने बोला कि मुझे 4 कमरे की कोठी दी है बंगला, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मुझे 1 कोठी ठीक है, मेरे 3 कोठी में 3 कमरे में आपका ICCR का ऑफिस शुरू करो। इतनी महान शख्सियत का फाउंडेशन भी चला रहे। और आज का दिन है सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्मदिन के दिन आप आदर्श टीचर्स के सम्मान दे रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप समाज का। इसलिए बड़ा काम कर रहे हैं कि जो हमारे आइडियल टीचर है, बेस्ट टीचर है, उनको तो आगे ला रहे हैं। उससे ज्यादा मैं ये समझ रहा हूँ कि यहाँ जो टीचर, यहाँ जो पेरेंट्स आए हुए हैं, जो मुझे बुजुर्ग दिख रहे हैं, जो मुझे हमारी माँ बहनें दिखती है, उनको ये फोरम ये बता रहा है कि शिक्षा के बगैर कोई चारा नहीं। एजुकेशन अगर आपके जिंदगी में यहां से आगे छोड़ दो आज तक की जिंदगी, अगर हमारी जनरेशन को, हमारे बच्चों को खड़े रहना है, उनको खड़े रहने की ताकत देनी है, तो पढ़ाई के बगैर कोई चारा नहीं। एजुकेशन, एजुकेशन और सिर्फ एजुकेशन, ये मैसेज आप ऐसे फंक्शन से। आपण हा रिपोर्ट पूर्ण पाहिल्याबद्दल शतशः धन्यवाद।